अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का खैर मकदम है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। कांग्रेस एमएलए को महेश कुमार गौड़ का इंतबाह, बल्दियाती इंतखाबात में कारकर्दगी बेहतर न होने पर असेंबली टिकट नहीं मिलेगा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के करीब सरपंचों का एहतजाज, जेर इल्तवा बिल्स की रकम जारी करने का मुतालिबा। श्री राम सेना के सदर का हिंदू त्यौहार के दौरान हथियार रखने का ऐलान, कांग्रेस हुकूमत पर इल्जामात। मनीष सिसोदिया का इल्जाम, करप्शन केस में गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उकसाने की गई कोशिश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वादा, कांग्रेस हुकूमत आने पर शरपसंदों और मुंशियात के स्मगलरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब खबरें तफसील से। सदर टीपीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस के एमएलए को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वह अगर बल्दियाती इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे तो उन्हें आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत दी है कि वो अवामी स्कीमात को मुअस्सर अंदाज में अवाम तक पहुँचाए। साथ ही मकामी रहनुमाओं की शिकायत के मुताबिक अफसरान कांग्रेस के कायदीन की बात नहीं सुन रहे हैं और हालिया BRS में शामिल होने वालों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। हैदरा ने पीर को मादापुर इलाके के कावेरी हिल्स पार्क में गैर मजाज स्पोर्ट एकेडमी के ढांचे को गिरा दिया। ये कार्रवाई कावेरी हिल्स एसोसिएशन की शिकायत पर की गई थी। हैदरा के ओहदेदारों ने बताया कि मादापुर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्लस्टर में शामिल है, जहां गैर कानूनी तामीरात की कोई गुंजाइश नहीं है। निजाम के बाद पार्क में कावेरी हिल्स का बोर्ड भी नस्ब किया गया। स्पोर्ट एकेडमी के इंतजामिया का कहना है कि उन्हें ये जगह 25 साल के लिए लीज पर दी गई थी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के करीब कशीदगी की सूरत हाल देखने में आई जब सरपंचों के JAC ने जेर इल्तवा बिल्स की रकम जारी करने के मुतालबे पर एहतजाज किया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर JAC के अरकान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान बहस तकरार हुई, जिससे सेक्रेटेरिएट के करीब कशीदगी बढ़ गई। बाद में पुलिस ने कई एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। सरपंचల పెండింగ్ బిల్లులను గ్రామ పంచాయతీలో అభివృద్ధి పనులు చేసిన సర్పంచ్ల పెండింగ్ బిల్లులను గ్రామ పంచాయతీలో అభివృద్ధి పనులు చేసిన సర్పంచ్ల పెండింగ్ బిల్లులను ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం వాళ్ళు ఇక్కడ జస్టిస్ 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 సర్పంచుల పదవి కాలం అయిపోయి దాదాపు 8 నెలలు గడుస్తుంది. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 9 నెలలు అవుతున్నది అధికారంలోకి వచ్చి. కనీసం మా సర్పంచుల పెండింగ్ బిల్లుల మీద మేము ముఖ్యమంత్రికి 2 సార్లు వినతి పత్రాలు ఇచ్చాం. అదేవిధంగా డిప్యూటీ సీఎం కు 2 సార్లు ఇచ్చాం. పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ కి 5 సార్లు ఇచ్చాం. అదేవిధంగా ఆల్ మినిస్టర్ అందరి మినిస్టర్లకు వినతి పత్రాలు ఇచ్చినాం. ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చినాం. అధికారులు పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ నుంచి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ నుంచి ఎంపీడీ దాకా వినతి పత్రాలు అందజేసినాం. అదేవిధంగా మేము మా పెండింగ్ బిల్లులు ఉన్నాయని రాష్ట్ర గవర్నర్ గారికి కూడా ఈ ప్రభుత్వం చెప్తే ఇంటలేదు. మా పెండింగ్ బిల్లులు ఇప్పించండి, మా సర్పంచులు అనేక మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు, చనిపోతున్నారు, మమ్మల్ని కాపాడమని మేము గవర్నర్ గారికి కూడా వినతి పత్రం అందజేసినాం. గవర్నర్ గారు దాదాపు మీకు నెల రోజులలో క్లియర్ చేయిస్తా అని చెప్పిండు.
ఇప్పటికి దాదాపు 2 నెలలు అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం ప్రజాప్రభుత్వం ప్రజాపాలన అనేది దాంట్లో మేము దాదాపు మాకు 8 నెలల నుంచి మా పెండింగ్ బిల్లులు ఇవ్వకుండా మమ్మల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తారు. మేము ఏదేమైనా ఒక గాంధీ మార్గంలో మేము గాంధీ చూపించిన సిద్ధాంతాలతోనే మేము నిరసనలు కానీ వారికి వినమించడం జరిగింది. ఇప్పటిదాకా ఇక్కడ కూడా మేము సర్పంచుల ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేయలేదు. ఇప్పటికీ కొంతమంది సర్పంచులు సావుకు దగ్గరలో ఉన్నారు. అప్పుల బాధ, వేధింపులు, వడ్డీలు కట్టలేక సావుకు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా ఈ ప్రభుత్వం కాపాడాలని, లేని ఎడల ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక డెడ్ లైన్ పెడుతున్నాం. మేము ఇన్ని రోజులు చూసినాం, ఇక మా వల్ల కాదు. ఈ నెల 30 తారీఖు వరకు ఈ ప్రభుత్వం మా సర్పంచుల పెండింగ్ బిల్లుల మీద ఒక స్పష్టమైన వైఖరి ప్రకటించాలి. లేని ఎడల మేము ఆందోళన కార్యక్రమాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే, మేము అవసరమైతే ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్ కార్యాలయం కూడా ముట్టడిస్తేందుకు మేము సిద్ధమవుతాం. అదేవిధంగా అన్ని జిల్లాలో ప్రభుత్వాన్ని దిష్టిబొమ్మ కూడా దహనం చేస్తాం. అదేవిధంగా అధికారులని అనేక రకాలుగా మేము గ్రామాల్లో తిరగకుండా అడ్డుకుంటామని తెలియజేసేందుకు మాది 30 తారీఖు వరకు ఈ ప్రభుత్వం క్లియర్ గా సర్పంచుల పెండింగ్ బిల్ల మీద స్పష్టమైన వైఖరి ప్రకటించాలి. ఇవాళ వీడికి రావడం కారణం ఏంటంటే అమరవీరుల సూక్తి गैर मजाज तामीरात के खिलाफ अपनी मुहिम दोबारा शुरू करते हुए हैदरा ने इतवार के रोज कोकटपल्ली के नाला चिरूवू में 16 शीट्स को मुनहदिम कर दिया। ये कार्रवाई पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में अंजाम दी गई। हुक्काम ने रिहायशी इमारतों के अलावा तमाम गैर मजाज ढांचों को हदफ बनाया जो नाला चिरूवू के FTL और बफर जोन के अराजी पर तामीर किए गए थे। मुतासिरा मकीनों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें बगैर नोटिस के ही इनादामी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कई अफराद ने इस कार्रवाई के नतीजे में बेघर हो गए हैं और रोते हुए देखा गया है। एक नौजवान ने बताया कि उसकी जिंदगी इस इनादामी कार्रवाई से बिखर गई है क्योंकि उसने मकान की तामीर पर लाखों रुपए खर्च किए थे और इसकी अहलिया 7 माह की हामिला है। मुतासिरा मकीनों ने हुकूमत से दरखास्त की है कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए क्योंकि उन्होंने अपनी जायदादें खरीदने के लिए भारी कर्ज लिया था, लेकिन हुकूमत ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। వద్దు ఎవడు కూడా కొడతాడు దీంట్లో వండుకుంటా ఏ పోలీసు వాడు కొడతాడో కొట్టాడు దీంట్లో వండుకుంటా నా సామాన్ పోయే వరకు నా కొడుకు ప్రతి కష్టం నా సామాన్ పోయినాక ఊళ్ళో పట్టుకొని ఊళ్ళో పట్టుకొని ఏమైనా చేసుకోండి సామాన్లు పోలేదు మా సామాన్లు हिंदुत्व ग्रुप श्री राम सेना के कर्नाटक के सदर गंगाधर कुलकर्णी ने इतवार के रोज कहा है कि उनकी तंजीम ने हिंदू त्योहार मनाने के दौरान तहफ्फुज के लिए हथियार साथ रखने का फैसला किया है। बेंगलुरु में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुलकर्णी ने इल्जाम लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तदार आने के बाद मुस्लिम बिरादरी के कुछ अनासिर ने गणपति विसर्जन में खलल डाला है। उन्होंने कहा कि नागामंगला में संगबारी और पेट्रोल बम फेंके गए और कांग्रेस की हुकूमत इन वाकयात के बराह रास्त जिम्मेदार है। कुलकर्णी ने वजीर दाखिला जी परमेश्वर से इस्तीफा का मुतालबा किया है और कहा है कि रियासती हुकूमत इन अनासिर के साथ है जबकि वजीर दाखिला गैर जिम्मेदार हैं और ओहदे पर रहने के लायक नहीं है। उन्होंने नागामंगला के वाकये को महज एक इत्तफाक करार दिया।
आम आदमी पार्टी के सीनियर कायद और दिल्ली के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्हें करप्शन के केस में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उकसाने की कोशिश की गई थी। सिसोदिया ने जनता की अदालत नामी तकरीब में खिताब करते हुए बताया कि जेल में उनसे कहा गया कि केजरीवाल उन्हें फंसाया है, वो अगर उनका नाम ले तो वो बच सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनसे बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की गई थी और उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जेल में नुकसान पहुंचाया जाएगा। सिसोदिया ने कहा, मैंने उनसे कहा कि आप लोग लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी रावण में इतनी ताकत नहीं है कि वो ऐसा कर सके। सिसोदिया ने यह भी इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपनी माली मुश्किलात का जिक्र करते हुए बताया, 2002 में एक सहाफी के तौर पर खरीदे गए 5 लाख रुपए मालियत की जायदाद उनसे छीन ली गई और उनके बैंक अकाउंट में मौजूद 10 लाख रुपए भी जब्त कर लिए गए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे की फीस अदा करने के लिए भीख मांगनी पड़ी जब ईडी ने उनका बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिया था। वाज़ेह है कि सिसोदिया तकरीबन 1.5 साल तक जेल में रहे और गुज़िश्ता माह उनकी जमानत मंजूर की गई थी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया था। क्या होगा, जेल में कब तक पड़े रहोगे? अपनी सोचो। मुझे आगे ज्ञान भिजवाते थे, राजनीति में तो देखो सब ऐसे ही होता है, कोई किसी की नहीं सोचता। आपको आना चाहिए, आपको जेल से बाहर आना है तो आपको सुननी चाहिए इनकी बात। मुझे बता दे, आपकी वाइफ बीमार है, आपका बेटा पढ़ रहा है अभी कॉलेज में, सोचो अपने परिवार की सोचो, परेशान हो जाओगे। मेरे घर में, जो घर मैंने 2002 में जब मैं पत्रकार था 5 लाख रुपए में घर खरीदा था, उस घर को भी इन्होंने छीन लिया, अपने कब्जे में कर लिया। मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी के 10 लाख रुपए पड़े थे, वो 10 लाख रुपए भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। पहले डराते थे, समझाते थे, बहलाते फुसलाते थे, मेरा घर छीन लिया जो मैंने 5 लाख रुपए में 2002 में खरीदा था, बोले इसको भी जब्त कर लेते हैं। मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े थे, वो भी जब्त कर लिए। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, मुझे उसकी फीस भरने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े कि मुझे अपने बेटे की फीस देनी है, मेरा बैंक अकाउंट ईडी ने फ्रीज कर दिया है। इस तरह से टॉर्चर करते थे, इस तरह से मेंटली हैरेस करते थे। क्यों? इनकी कोशिश थी कि यह आदमी टूट जाए। लेकिन हम भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ में, अरविंद केजरीवाल जी की टीम के ग्रुप में खड़े हुए हैं। टूटे नहीं, घबराए नहीं, अंदर से टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब अंदर से नहीं टूटा तो इन्होंने बाहर से तोड़ने की कोशिश की, चारों तरफ से। कभी कहते थे, सर आपको पता नहीं है मनीष जी, आपको तो अरविंद केजरीवाल जी ने फंसा दिया है। मुझे आके कहते थे, मैसेज देते थे। मैंने कहा, भाई मेरे को तो अरविंद केजरीवाल जी ने 26 साल पहले फंसा दिया था, इस काम में उसी में लगा हुआ हूं मैं तो। कभी आके आपने भी देखा होगा, मीडिया के लोगों ने बताया था, बेशर्मी देखिए इनकी कि सीबीआई में अरेस्ट करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मुंह में एक बयान डाला, जबरदस्ती वहां कोर्ट में बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, सारा इल्जाम मनीष सिसोदिया पे डाल दिया। और जिस दिन कोर्ट में यह कहा कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, उसी समय मुझको आके कहा कि देखो अब तो केजरीवाल जी ने आपका नाम ले दिया, बेहतर होगा आप केजरीवाल जी का नाम ले दो, आप केजरीवाल जी का नाम ले दो तो आप बच जाओगे। मैं ऐसे सारे आरोपों पे, ऐसे सारी इनकी कोशिशों पे मैं मुस्कुराता था, हंसता था और मुस्कुराते हुए हंसते हुए इनसे कहता था, जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो मैं किस चीज में नाम ले दूं, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो केजरीवाल जी ने भी क्या नाम लिया होगा मेरा, और जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं किस चीज में नाम ले दूं केजरीवाल जी का। मैंने बार बार उनको कहा और आज इस मंच से, जंतर मंतर के मंच से दोहरा रहा हूं। मैं मुस्कुरा कर उनसे कहता था कि आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। जो लोग मैसेज लेके आते थे मेरे पास इनका, मैं उनको कहता था, आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने इनको कहा, भाजपा वालों को जवाब दिया कि आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करना मत, कोई दुनिया के किसी रावण में ताकत नहीं है कि लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। बहुत कोशिश की इन्होंने तोड़ने की, समझाने की, मुझे अंदर से तोड़ने की, पार्टी से तोड़ने की। मैं इनको कह देता था कि 26 साल की दोस्ती है, अरविंद केजरीवाल जी मेरे दोस्त हैं, 26 साल से मेरे भाई हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। जब मैंने अपनी वाइफ को यह बात बोली कि इस तरह के मैसेज आते हैं, मैंने उसको नॉर्मली बातचीत में कहा था
कि यार मैं कैसे छोड़ सकता हूं ऐसे आदमी का साथ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इन कार्यकर्ताओं को, क्या मुंह दिखाऊंगा अपने आप को, शीशे में देखूंगा कि मैं ऐसा सोच भी सकता हूं कहीं। तो मेरी वाइफ ने कहा कि कार्यकर्ताओं को और अपने आप को तो बाद में छोड़ो, अगर ऐसा सोचोगे भी तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे अगर अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ने के बारे में सोचोगे तो। अगर अरविंद केजरीवाल जी के नाम के बारे में ऐसा सोचोगे, उनके साथ गद्दारी करने के बारे में सोचोगे तो। इनको भी पता था कि 26 साल की यह दोस्ती इनसे टूट नहीं सकती। इन्होंने मुझको और केजरीवाल सर को 18 महीने अलग रखा। मैं कहता हूं फिर से, 26 साल की दोस्ती में मैं और अरविंद केजरीवाल जी 18 महीने तो क्या, 18 दिन भी अलग, 18 घंटे भी अलग नहीं रहे कभी 26 साल में। रोज मिलते थे, रोज देश के बारे में बात करते थे, रोज देश के बारे में काम करते थे, जहां लड़ते थे इकट्ठा लड़ते थे। लेकिन दुष्टों ने 18 महीने मुझको और सर को अलग रखा। 18 महीने बाद मिले अभी 13 सितंबर को, तो दिल भर आया देख के सर को। आपने देखी होगी, मैं जब सर तिहाड़ से निकल के, हम तिहाड़ के सामने भी थे, तिहाड़ से निकल के घर पहुंचे तो जो गले लगाया सर ने और मैंने सर को गले लगाया, आपने वो फोटो शायद देखी होगी, किसी ने फोटो ले ली थी, वो किसी ने फोटो खींची थी। मैं बाद में सोशल मीडिया पे मुझको किसी ने भेजी वो फोटो में देख रहा था। हम दोनों के चेहरे पे आप जान सकते हो कि हमारे और उनके बीच में क्या रिश्ता है, इस दोस्ती के बीच में क्या रिश्ता है। इसको तोड़ने चले थे बीजेपी वाले। मैं देख रहा था उस फोटो को और मैं सोच रहा था कि वैसे तो रामचरितमानस में, रामायण में, इस घटनाक्रम में कभी राम और लक्ष्मण अलग नहीं हुए, लेकिन अगर कभी राम और लक्ष्मण अलग होकर वापस मिलते तो ऐसे ही मिलते जैसे मैं और केजरीवाल जी जिस भाव से मिले थे। उनकी तस्वीर भी ऐसे ही आती अगर वो मिलते उस तरह से, राम लक्ष्मण भी अलग होकर मिलते। हम दोनों 18 महीने के बाद मिले थे। 13 सितंबर को सर जब वापस आए, शाम को सब हम लोग बैठे, सारे मंत्री, विधायक, बहुत सारे कार्यकर्ता थे। जब सब जाने लगे तो सर ने कहा 5 मिनट बैठो मेरे साथ। मैं और सर फिर बैठे थोड़ी देर घर में। जाने से पहले रात को बहुत कुछ बातें थी 18 महीने की कहने सुनने की, बहुत कुछ मेरे दिल में था, बहुत कुछ सर के दिल में था कहने के लिए। हमने बातें की, हमने चर्चा की कि किस तरह से 26 साल पहले परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, किस तरह से हम दिल्ली विद्युत बोर्ड उस समय हुआ करता था, दलाल साहब जानते हैं, दिल्ली विद्युत बोर्ड हुआ करता था। दिल्ली विद्युत बोर्ड के दफ्तर के सामने मैं और अरविंद केजरीवाल जी जाके एक टेबल चेयर लगाते थे और वहां आने वाले लोगों को कहते थे इस दफ्तर में रिश्वत मत देना, हमने कानून पढ़ रखा है, अगर कोई इस दफ्तर का अधिकारी आपसे रिश्वत मांगेगा तो हम आपकी एप्लीकेशन बनाएंगे, रिश्वत मत देना। हम बैठ के दिन में 50-60 लोगों की एप्लीकेशन लिखवाते थे और वो लोग ऊपर जाके अपना काम करवाते थे। उस एप्लीकेशन की वजह से उनका काम ईमानदारी से होता था, क्योंकि सिटीजन चार्टर के हिसाब से हम एप्लीकेशन बनाते थे। हमने उस दिन बैठ के याद किया सर ने और हमने कि किस तरह से 25 साल पहले, 26 साल पहले ये लड़ाई शुरू की थी, ईमानदारी के लिए, देशभक्ति के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। हमने याद किया कि कैसे दिल्ली की झुग्गियों में जाके गरीब लोगों के राशन कार्ड बनवाने से लेके गरीब लोगों के राशन दिलवाने तक की लड़ाई लड़ी है। इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि किसी सत्ता में आना है, किसी कुर्सी पे आके बैठना है। हमने याद किया कि किस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बनवाया, और जब देश में राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बना तो पूरे देश में घूम घूम के लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने में मदद की, लाखों लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने में मदद करी, जिससे उनके काम ईमानदारी से हुए, जिससे वो भ्रष्टाचार से आम आदमी लड़ सका। ये सब लड़ाई लड़ी। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इन राजनीतिक कुर्सियों पर आके बैठ। हरियाणा के साबिक वजीर आला और अपोजिशन लीडर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है कि अगर वह रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो शरपसंदों और मुंशियात के स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुंशियात के स्मगलरों और बदमाशों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस हुकूमत उनका मुकम्मल खात्मा करेगी। खिताब करते हुए बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के दौर में हर गांव, गली और मोहल्ले में मुंशियात का जहर फैल गया है, जिससे नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। हुड्डा ने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत गुज़िश्ता 10 साल से नौजवानों को नशा का आदी बनाने की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं और उसका नतीजा यह है कि आज हरियाणा में मुंशियात की वजह से पंजाब से ज्यादा अमवात हो रही है। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार क्योंकि उन्होंने
कांग्रेस पार्टी की सरकार की काम देखे, पता खाली बीजेपी और जेजेपी की काम देखे। 2014 में जब हमने कांग्रेस सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा प्रतिनिधि आयोग में निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और भाई खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था पूरे देश में। और आज इस चीज में है नंबर 1 10 साल के बाद। आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में पंजाब से आगे नहीं हो गया। और बहुत उसमें आपने देखा नौकरी का मामला है, बच्चों को नौकरी नहीं दी है, ठेके पे लगा रखा है। और कानून व्यवस्था बिल्कुल अपराधी की तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं। तो ये आपने पक्षी देखे तो हम हरियाणा बहुत पीछे चला गया। और इस इलाके में पूरा खालिया गाँव खड़ा है और भी आसपास के गाँव के आदमी होंगे। मेरा एक आपसे सवाल है, भाई कोई इस 10 साल में कोई इस गाँव का काम हो रहा है तो बहुत बड़ा काम हुआ है। कैमरा बंद है। आज मौका है कि आप छत्तीसगढ़ आदमी मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करो। अब सवाल इस बात का, आप जाओगे लोग पूछेंगे आपसे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या करोगे? जब 5 साल बाद बता रहा हूँ, बाकी तो घोषणा पत्र आ जाएगा हमारा। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई लोगों की पेंशन 6,000 करेंगे, गैस का सिलेंडर 500 करेंगे और महिलाओं को 2-2 हजार देंगे। और जो आपकी उसकी बिजली की यूनिट है 300 यूनिट फ्री करेंगे। और नौकरी का जो नौकरी का इन्होंने क्या रखा है ना, ठेके में हमारे बच्चों को नौकरी दे रहे। नतीजा ये हुआ 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। ये तो नौकरी दिलवा रखी है, ना तो पेंशन है, ना रिजर्वेशन है, ना कुछ है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख अपने बच्चों को नौकरी देंगे। हमने गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लॉट दे रहे, 4 लाख प्लॉट अलॉट की थे और 3 लाख अंकित कर दिए थे। जिस सरकार ने बंद कर दी, हम आएंगे तो भाई कांग्रेस जो नीति थी फिर से प्लॉट देने की महात्मा ग्रामीण योजना जो है योजना शुरू करेंगे। अपने प्लॉट के साथ 100 गज के प्लॉट के साथ गरीब आदमी को 2 कमरे का मकान भी बना देंगे। तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, आपको बताएंगे। कानून व्यवस्था का सवाल है। देखो मैं एक बात कहते जा रहा हूँ, 2005 से भी पहले हालात खराब थे कानून व्यवस्था के, अपराध बहुत था। और 2005 में मौका मिला हमारे को मेरे को सेवा करने का मौका। आखिर में हेडलाइंस फिर। कांग्रेस एमएलएस को महेश कुमार गौड़ का इंतबाह, बल्दियाती इंतखाबात में कारकर्दगी बेहतर न होने पर असेंबली टिकट नहीं मिलेगा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के करीब सरपंचों का एहतजाज, जेर इल्तवा बिल्स की रकम जारी करने का मुतालिबा। श्री राम सेना के सदर का हिंदू त्योहार के दौरान हथियार रखने का ऐलान, कांग्रेस हुकूमत पर इल्जामात। मनीष सिसोदिया का इल्जाम, करप्शन केस में गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उकसाने की गई कोशिश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वादा, कांग्रेस हुकूमत आने पर शरपसंदों और मुंशियात के स्मगलरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज।